Hello friends. So today we are going to start with e-commerce topic. हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी स्टडी कर लिया है व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनेट, राइट। अब मैं ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा हूँ या आप लोगों को बोलूँ कुछ भी ई कॉमर्स के बारे में या बुक में से कुछ भी हम पढ़े, उससे पहले एक चीज़ जो मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि आप लोगों में से आई कैन से 90-95% ऑफ द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, are aware of online book deliveries, are aware of online food deliveries, जोमेटो स्विगी, आप सब लोग ये सब यूज़ करते हो, राइट। सो वट एवर दैट यू ऑल आर ऑलरेडी यूजिंग राइट नाउ, दैट इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ई कॉमर्स के ही प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो, राइट। दिस आर द थिंग्स विच इज़ नथिंग बट ई-कॉमर्स ओनली, दैट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से यू आर डेवलपिंग अ बिजनेस। और कॉमर्स में हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई ट्रेड एंड ट्रेड से रिलेटेड ऑल एंग्जिलरी एक्टिविटीज़, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे, दैट इज़ नथिंग बट ई कॉमर्स दैट यू ऑल कैन सी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, राइट। सो हियर there are scope of electronic commerce trade, right। electronic commerce e-commerce जो ट्रेड हो रहा है उसकी कुछ फील्ड्स है that we need to understand, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी देन यू विल बी लाइक कि चलो ये भी हमें पता है। सी दिस चैप्टर इज आई कैन से द मोस्ट basic chapter, not basic in terms of knowledge but in terms of practicality. You already know many of the things, that is what becomes for easy for you to grab the things that I am telling you, and it will become even easier to write it in the books, I mean write it in the exam, right। So first thing is B2C field of e-commerce, that is business to customers. We go on Amazon, we check out the products, we buy something, that is what business to customer। business गया customer के पास and business gave the information, we have this and this and this and this and this things, and you may check it out। that is there is Tata Click, मैकडोनल्ड्स, अमेजोन, ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे रादर एग्जाम्पल्स दे के रखे हुए हैं दैट यू ऑल कैन सी ओवर हियर। मैकडोनल्ड्स, अमेजोन, on which you can go, you can check it out, what are the products that they are offering, and you can just buy it, right। So that is business to e-commerce, in which the customers can get all the information regarding the products, customer get the idea about the, or rather comparison about different products, and then they can buy, right। then there is what B2B, that is business to business, in which there are business persons, there are persons who are engaging, who are running with their business, can come together on a portal, can meet with each other, and can tell everyone that can promote their business with all other business persons, and can tell them कि भाई आप लोग भी मेरा business promote करो, या आप लोग भी मेरे business में उसको business को आगे बढ़ाने में help कराओ, right। so that is business to business, जिसमें मैंने यहाँ पे अलीबाबा ग्रुप्स, ट्रेड इंडिया, global sources लिखे हुए हैं, right। these are the groups in which the retailers, the wholesalers will come together, will discuss the things, will share the information regarding their various products, and that will help them to increase their business, to grow, right। so that is what business to business। then there is C2C, customer to customer। अब ये कैसे हुआ customer to customer, कस्टमर ही आएगा, कस्टमर ही बेचेगा, वो कैसे, you already know it, OLX पे बेच दे, that the advertisement is there that you have already heard about, right। OLX पे बेच दे मतलब if you're not happy with the product, or if you're not willing to keep any of your product, and yeah, you can just sell it off। अगर आपको necessary नहीं लग रहा है, you can sell it off। I have seen many of the students, many of the youngsters using this kind of portals, कि भाई उन लोगों ने let's say for example ट्रेडमिल मंगवाया है या ऐसा कुछ मंगवाया है, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, और जिसकी अब उनको ज़रूरत नहीं रही ना, और अदरवाइज दे आर फीलिंग कि भाई नहीं अब हमें it is of no use, though they can just click the pictures from all the ways, and then they can sell it off to other customers। so that is customer to customer, right। quicker.com is there,
there, OLX is there are various portals like that. Cars24 है, मैंने ऐसा सुना है, मतलब कि you can sell your car to another customer. So you are supposed to just check it out on the given website or given link or given application, and then you can just sell it off, right? So that is there, डीलिंग बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर. एंड देन देर इज़ कस्टमर टू बिजनेस, जिसमें मैंने लिखा हुआ है फूड ब्लॉगर. कस्टमर टू बिजनेस, सी देर आर वेरियस फूड ब्लॉगर्स जिनका काम क्या है पता है, जिनका काम ही यही है प्रमोट करना, डिफरेंट बिजनेसेस को प्रमोट करना. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फूड ब्लॉगर, आई गो टू वेरियस रेस्टोरेंट्स, आई ईट द फूड एंड देन आई रेट द फूड, आई प्रोवाइड डिटेल्स टू माई कस्टमर्स, rather details to my followers. For example, I am using Instagram, and my profile is public profile. There are various ample of followers. See, there are people who are doing a great blogging. They are having ample of followers, they are having millions of followers, like a celebrity, and they write various useful information which people follow. So for example, if I am a food blogger, my profile is public on Instagram, people follow me, people ask the reviews to me regarding various food products and everything. And if let's say एक्स नाम का कोई ब्रांड है जो मुझे बोल रहा है कि भाई आपको हम ये फूड प्रोडक्ट दे रहे हैं, यू जस्ट टेस्ट इट, आपको सही लग रहा है तो आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखो, कुछ लोगों को बताओ. एंड दूसरा, दे मे पे मी ऑल्सो, कि आप लिए आपका कमीशन भी रखो कि आपकी वजह से people are coming to us and eating food, right? So that are customer to business. So customer, I am already the customer of that product, and then I am helping them out to earn more business. That is customer to business. So there are mainly 4 fields for e-commerce, rather scope of e-commerce they may ask. One is what? Business to customer, Amazon याद रखना है. Business to business, Alibaba groups याद रखना है. Customer to customer, OLX याद रखना है. And customer to business में food bloggers याद रखने हैं, right? So is it easy? Very easy, I can say. Then there is what? Requisites of implementation of e-commerce. ई-कॉमर्स करना है तो इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट इज़ द नीड दैट वी शुड हैव. बीइंग अ कस्टमर आई नीड टू हैव द वेबसाइट. नो, मुझे पता ही नहीं है अमेजोन करके कुछ वेबसाइट है जिसके ऊपर आई कैन गो एंड आई कैन बाय समथिंग. तो वेबसाइट इज़ मैंडेटरी, रिक्विजिट कि मुझे कुछ बाय करना है ऑनलाइन, राइट. देन सेकेंडली, कंप्यूटर विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी. सीधी बात है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कैन वी बाय? द आंसर इज डेफिनेटली नो, वी कैन नॉट. सो वी नीड अ कंप्यूटर और वी नीड अ सिस्टम ऑन विच देर इज़ अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी in which we can log in and we can just buy whatever we want to. And third is credit or debit card. Definitely right now in this pandemic situation, definitely they are definitely going for cashless delivery, but पहले cash on hand भी they used to prefer. You should have a credit or debit card by which you can provide the information and you can just buy, right? So this is the requisites money, the necessary things for the implementation of e-commerce. Now let's look at the textbook में you can see this on page number 37. whatever that I have been teaching you आपको 37th पेज पे मिल जाएगा. just a moment. Yeah, on page number 37 you will get the meaning and everything regarding e-commerce. Then on page number 38 there is field. They may ask this for 5 marks separately, so you must know all of it. Even they can ask individually for 1 mark or 2 marks, so you should know it, right? मैं इसीलिए यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे, राइट. चलो, देन requisite equipment for successful implementation. Even they can ask this for 3 marks.
जो मैंने अभी अभी एक्सप्लेन करा. नाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स एंड देन देर आर वेरियस थिंग्स विच यू ऑलरेडी नो, बट फॉर विच आई हैव नॉट मेड एनी काइंड ऑफ चार्ट, बिकॉज ये हमें बुक में से ही सही से समझ में आ जाए वैसा है. एंड आई फील यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स. आप सब लोगों ने तो बहुत सारा यूज़ भी किया होगा. दैट इज़ वॉट आई फील. सो लेट्स जस्ट have a look what they have provided to us. One is what online transactions के लिए प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज. प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज में क्या होगा? जस्ट अ मिनट. प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज, इसमें मैं क्या करूँगी? मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल आई वांट टू बाय अ कंप्यूटर, सो मैं ऐसे ही बाय कर लूँगी? द आंसर इज़ नो. आई विल चेक इट आउट. अमेज़ॉन पे देखूँगी या फ्लिपकार्ट पे देखूँगी या बहुत सारे ऐसी जगह है ऑनलाइन जहाँ पे क्रोमा की ऑनलाइन साइट पे देखूँगी जाके कि भाई व्हाट आर द प्राइसेस दैट आर अवेलेबल, राइट. सो प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज में हम लोग एडवर्टीजमेंट की हेल्प से, इंफॉर्मेशन की हेल्प से विल जस्ट चेक इट आउट on which portal, on which site we are getting good amount, we are getting good prices, we are getting good discount, we are getting good quality product also, right. Then second is conditions of buying and selling. We need to check that also now, whether there is a fixed price, whether there is discount, whether there is offers, whether there is offer for a specific card or something like that. And then there is delivery of goods and पेमेंट. अगर सिलेक्ट कर दिया देन हम सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट एंड देन इट विल बी डिलीवर्ड एंड विल पे, राइट. अब वो जो डिलीवर हो जाता है एंड वी पे, वो सब तो हमें पता है, पर यहाँ पे प्रोसेस दिखाई है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें सबसे पहले आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन. आपने भी अगर कहीं पे कोई गुड्स बाय करना चाहा है, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन पे आपका अकाउंट इज़ नॉट देयर बट स्टिल यू हैव लॉग्ड इन, रादर नॉट लॉग्ड इन, यू हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द साइट और आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ बाय करना है, you just add it to the cart and they'll definitely ask you for registration. Give us the details. आपका email ID बताओ, आपका ये बताओ, आपका मोबाइल नंबर बताओ, पासवर्ड सिलेक्ट करो, पासवर्ड सजेस्ट करो, आई मीन पासवर्ड फिक्स करो, एवरीथिंग. सो फर्स्ट थिंग इज़ टू रजिस्टर. सेकेंड, आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड यू कैन प्लेस द ऑर्डर कि ओके फाइन चलो अब मुझे ये चाहिए. एंड थर्ड विल बी द पेमेंट सिस्टम कि प्लेस कर दिया ऑर्डर, फाइन, अब आप पेमेंट कर दो. सो रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट. एक बार आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने ले ली एंड देन व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज़ दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर ऑर्डर एंड देन दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर पेमेंट ऑल्सो, राइट. नाउ हियर देर आर मोड ऑफ पेमेंट्स, डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट्स दैट यू कैन सी ओवर हियर. आपको कुछ 6 मोड्स ऑफ पेमेंट्स दिखेंगे आपकी स्क्रीन्स पे. द फर्स्ट थिंग इज़ कैश ऑन डिलीवरी, जिसके बारे में मैं ना ही बोलूँ कुछ तो अच्छा है. वी ऑलरेडी नो इट. वी place an order, they accept the order, they deliver the order and then they collect the cash, right. So that is cash on delivery. Then second is check. If we are buying a big product like vehicle or something big asset or something like that, in that case they definitely prefer to get check. वो हमारे पास से चेक लेके जाते हैं. पेमेंट ऑफ मनी कैन बी डन थ्रू चेक. देन नेट बैंकिंग ट्रांसफर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड IMPS, RTGS, NEFT. सो बाय ऑनलाइन ट्रांसफरिंग द सेम वी कैन गेट द प्रोडक्ट. Then there is what? Credit card and debit card. Either credit card का information they'll take it from us or debit card का information they'll take it, जिसमें हमें सारी की सारी कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ती है. वो सारी की सारी कार्ड की डिटेल्स वहाँ पे वो लोग फिल करते हैं, आई मीन एंटर होने देते हैं एंड देन दे थ्रो अस टू द पेमेंट गेटवे जहाँ से अपना पेमेंट होता है एंड देन विल गेट द रिसीट्स. एंड देन देयर इज़ डिजिटल कैश, जिसमें मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलूँगी, पेटीएम करो. दैट इज़ व्हाट यू हैव हर्ड सिंस लॉन्ग बैक, राइट. हमें आइडिया है ही कि भाई पेटीएम से हो जाता है, राइट. तो पेटीएम इज़ नथिंग बट योर डिजिटल कैश, जिसमें वॉलेट में पैसे पड़े रहते हैं. इवन अमेज़ॉन का भी एक डिजिटल लॉकर है, राइट, जहाँ पे वॉलेट में पैसे पड़े हैं, मीनिंग देयर बाय आपके बैंक अकाउंट के पैसों की बात नहीं कर रहा है. पेटीएम से आपने पे किया है, रिसीव किया है, तो वो डिजिटल कैश इज़ देयर बाय विच यू कैन डेफिनेटली ट्रांजेक्ट. तो दिस आर द 5 modes by which you can do the payment thing, right. Then modes of payments, they can ask definitely for 4 to 5 marks, 4 marks I can say. So पूरा ये हमें लिखना है सही से, right. Now safety and security transactions regarding, there are certain things which you are supposed to look at. Safety and security transactions,
जहाँ पे मैंने बॉक्स करा हुआ है अभी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन में ऐसा बोला गया है कि देर आर मैनी रिस्क in online transaction in comparison to traditional money transactions, and this risk are which type of risk? Definitely if you go there in a shop, you go there, you buy something, you pay money, that is less riskier than as compared to the online transactions. Not in the pandemic situation. I'm not talking about the corona situation, I'm talking about the normal routine situation. डेफिनेटली ना, आप जाके कुछ देख के, सही से हर जगह से देख के, क्वालिटी चेक करके बाय करोगे एंड पे करोगे, तो वो डेफिनेटली इट इज़ नॉट रिस्की रादर देन द ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन में क्या क्या रिस्क होता है? सबसे पहला है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या ये जो ट्रांजेक्शन है, क्या वो सेफ़ है? क्या आपने कुछ पेमेंट करा है या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली है, क्या ये सेफ़ है? करेक्ट। सो दैट इज़ व्हाट सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन है, क्या वो सेफ़ है? क्या एक्चुअल में जेन्यून में मुझे मिलने वाले हैं गुड्स मेरे कि नहीं? so that is a big risk, right? Then secondly it is security against risk of data collection। आपका डेटा कहीं लीक हो गया तो डेटा यानी डेफिनेटली हमने आगे ही देखा, दे प्रोवाइड अस विद अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो नहीं, चलो ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, मोबाइल नंबर डालो एंड यू आर डन। इतना ही काफ़ी है कुछ भी होने के लिए, राइट? सो इट डेफिनेटली योर डेटा इज़ नॉट सेफ, दे कैन मिसयूज योर डेटा, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। एंड थर्ड है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, आपके पासवर्ड्स आर देयर विथ द ऑनलाइन साइट। और जनरली अब तो क्या हो गया है कि हम कुछ भी लॉग इन कर रहे हैं एंड देन दे विल गिव अस द ऑप्शन कनेक्ट विथ फेसबुक, कनेक्ट विथ गूगल, एंड वी सिलेक्ट दैट कनेक्ट विथ फेसबुक, तो सीधा बस ख़त्म, फेसबुक के अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। फेसबुक का पासवर्ड इज़ ऑल्सो देयर, everything is in terms and conditions में we even tick mark the I agree part without even agreeing to it, right? So that is also a risk, right? ये भी क्या हो गया, एक रिस्क हो गया जिसमें अपनी प्राइवेसी की पॉलिसी नहीं रहती है या प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में रिस्क है, राइट? सो दैट इज़ ऑल्सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इट इज़ risky process, risky business as compared to the traditional process. So here we are done with e-commerce part. We will be doing the last topic of this particular chapter, that is outsourcing, in our coming session. Thank you.